Hi guys. Yesterday we talked about the event in sexual reproduction. There are three topics. First one is pre-fertilization events. Second one fertilization event. Third one post fertilization events. उसको हमने कैटेगराइज कर दिया था, तो उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे आज. कल के टॉपिक को आगे फॉलो करेंगे भैया. तो अवर यस्टरडे टॉपिक वाज events in sexual reproduction. Events in sexual reproduction. So first one was pre-fertilization events. Pre-fertilization events. And these are of two types. First one is gametogenesis. And second one was gamete transfer. The first event is pre-fertilization event. These are of two types. First one is gametogenesis. Second one is gamete transfer. And second was fertilization. And third one was post-fertilization events. And these are of two types. First one is zygote and second one was embryogenesis. So let's start. Yesterday we talked about these events and now we describe these events. So first one is pre-fertilization event. फर्टिलाइजेशन से पहले कौन सी इवेंट्स होगी, उसमें दो टाइप है, एक गैमेटोजेनेसिस, सेकंड वन गैमेट ट्रांसफर. एक एक करके इनको स्टार्ट कर देंगे. इनको स्टार्ट कर देते हैं एक एक करके. सो फर्स्ट वन इज गैमेटोजेनेसिस. फर्स्ट इवेंट gametogenesis. What is gametogenesis? The formation of male and female gamete is known as gametogenesis. First point is formation of male and female gametes is known as gametogenesis. So this is the definition of gametogenesis. What is the definition? Formation of male and female gametes is known as gametogenesis. So this is the definition of gametogenesis. And what will be the next? Gametes are of two types. Gametes are of two types. Which ones?
First one is male gametes, and second one is female gamete. So gametes are of two types. First one is male gametes and second one is female gametes. अब ये जो मेल और फीमेल गैमिट होते हैं, प्लांट्स में इनको कहते हैं एंथेरोजोइड्स और एनिमल्स में कहते हैं इनको स्पर्म. तो लेट्स सी इन प्लांट्स एंथेरोजोइड्स, इन एनिमल्स these are called sperms. तो देखो मेल गैमेट्स भी दो नाम है इनके, प्लांट्स में होंगे तो एंथेरोजोइड्स और यदि एनिमल्स में होंगे तो स्पर्म. एंड फीमेल गैमेट्स आर नोन एज ओवम और एग. Let's see the first event of pre-fertilization, gametogenesis. What is gametogenesis? Formation of male and female gametes is known as gametogenesis. And gametes are of two types. First one is male gametes and second one is female gametes. And male gametes are known as entherozoids in plants and sperm in animals. And female gametes are known as ovum or eggs in both animal and plants. So this is the second point. Third one. अब देखो ये जो गैमेट्स होते हैं, ये गैमेट्स भी क्या होते हैं, दो टाइप के और होते हैं. अभी तो मेल और फीमेल के तो नाम बोले हमने. फर्स्ट वन इज होमोगैमेट्स एंड सेकंड वन इज हेटेरोगैमेट्स. फर्स्ट पॉइंट. Now let's see the third point. Gametes. Gametes are of two types on the basis of morphology. गैमीट्स आर ऑफ टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी. यानी इनकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखें तो दो टाइप के हो जाएंगे. ये तो इनके नाम थे भैया, ये इनके नाम थे. दीज आर एग्जांपल. एंड गैमीट्स आर ऑफ टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. ऑन द बिहाफ ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दीज आर ऑफ टू टाइप. फर्स्ट वन इज होमोगैमेट. First one is homogametes. When the male and female gametes are similar and not categorized, these type of gametes are known as homogametes. जब मेल और फीमेल गैमेट दोनों जो होते हैं सिमिलर होते हैं, दोनों मोटाइल होते हैं, दोनों सिमिलर होते हैं, उनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी सेम है, दोनों मोटाइल हैं, ऐसा केवल सम एल्गी में, कुछ एल्गीज में होता है भी. तो when the male and female gametes are similar and not categorized, these are known as homogametes. So first one is homogametes. When male and female gametes are similar. देखो दोनों सेम है भैया, मेल और फीमेल गैमेट्स जो है दोनों सिमिलर है. यहाँ पर दोनों सिमिलर है और इनको कैटेगराइज नहीं कर सकते. एंड नॉट कैटेगराइज, एंड नॉट कैटेगराइज. अब इनको देखो कैटेगराइज नहीं कर सकते भैया इनको, तो इनको कैटेगराइज नहीं कर सकते. तो दीज गैमेट्स आर नोन एज होमोगैमेट्स. These gametes are known as homogametes.
देखो यदि मेल और फीमेल गेमेट्स जो होते हैं वो सिमिलर है और कैटेगराइज नहीं कर सकते हो आप कि ये मेल है ये फीमेल है, दोनों सेम है, तो ऐसे गेमेट्स को क्या कहोगे आप? होमोगेमेट्स। और देखो यहाँ पर इसमें एग्जाम्पल क्या है? सम एल्गीज। सम एल्गीज इसमें आएंगे। लेट्स सी द डायग्राम। दिस वन इज मेल gametes and this is female gametes. Both are looking same. This one is male gametes and this is female gametes. देखो मेल और फीमेल गेमेट दोनों सेम है यदि दोनों की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी सेम है और दोनों मोटाइल है, दोनों फ्लेजिला है। देखो ये फ्लेजिला भी है इनके अंदर। बोथ आर सेम इन मॉर्फोलॉजी और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। दीज गेमेट्स आर नोन एज होमोगेमेट्स। दीज आर फाउंड इन सम एल्गी लाइक क्लेडोफोरा। दिस इज द एग्जाम्पल क्लेडोफोरा। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इसमें ये तो हमने यहाँ तक तो कल ही पढ़ लिया था भैया, ये कल पढ़ लिया था हमने। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बता रहे हैं। फर्स्ट वन इज गैमेटोजेनेसिस, सेकंड वन गैमेट ट्रांसफर। तो आज तो हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, बाकी नहीं पढ़ेंगे भैया अपन। तो आज तो इन दोनों के बारे में ही पढ़ेंगे अपन। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है भैया? फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नोन एज gametogenesis. Gametes are of two type. First one is male gametes and second one is female gametes. In plants, male gamete is known as antherozoids. In animals, male gametes is known as sperm, and the female gametes is known as ovum or eggs in both animal and plants. एंड द गेमेट्स आर ऑफ टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। अब इनकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के आधार पर मॉर्फोलॉजी के बिहाफ पर दो टाइप के गेमेट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज होमोगेमेट्स एंड सेकंड वन इज हेटेरोगेमेट्स। तो देखो यहाँ होमोगेमेट्स है, ये होमोगेमेट्स व्हेन द मेल एंड फीमेल गेमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी एंड नॉट कैटेगराइज, इनको कैटेगराइज नहीं कर सकते। तो दीज गेमेट्स आर नोन एज homogametes. Example, some algae like Cladophora. And this is the diagram. Male gamete and female gamete both are looking same and not categorized. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो भैया इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट भैया? तो दिस इज ऑल अबाउट द होमोगेमेट्स। नाउ वी टॉक अबाउट द हेटेरोगेमेट्स। तो फर्स्ट थिंग इज द एग्जांपल ऑफ होमोगेमेट इज सम एल्गी लाइक क्लेडोफोरा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एल्गी। स्क्रीनशॉट ले लिया भैया? You taken a screenshot? Okay guys, so this is the all about the homogametes, and now we talk about the second type, that is not homogametes, that is heterogametes. These homogametes are also known as isogametes. So this is all about the homogametes or isogametes. Now we talk about the second type of gametes.
and second one is heterogametes. Second one is the heterogametes. तो देखो यहाँ पर सेकंड टाइप क्या होगा भी, यहाँ पर ये सेकंड वन इज हेटेरोगेमीट्स. अब क्या डिफाइन करोगे इनको? व्हेन द मेल एंड फीमेल गेमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, दोनों अलग अलग भी है, उनकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अलग अलग है. तो व्हेन द मेल एंड फीमेल गेमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट देन दे आर कॉल्ड एज ए हेटेरोगेमीट्स. तो देखो डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन मेल एंड फीमेल गेमीट्स are morphologically distinct. देखो डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट है ये. व्हेन मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, यानी उनकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, देन they are known as heterogametes. So this is the heterogametes. देखो यदि मेल और फीमेल गैमेट्स दो बोथ आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजिकल, देन दे आर नोन एज होमोगेमेट्स. और वो कैटेगराइज नहीं हो रहे थे. मेल फीमेल गैमेट यदि सिमिलर हैं और कैटेगराइज नहीं हो रहे तो होमोगेमेट्स. और व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, यानी मॉर्फोलॉजिकल यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में डिफरेंट है, देन दे आर नोन एज हेटेरोगेमेट्स. एंड द एग्जांपल, देखो फर्स्ट इनकी डायग्राम बना देते. देखो यहाँ बता रहे भी इसके अंदर ये तो है फीमेल गैमेट, female gametes and this is male gamete. देखो दोनों की स्ट्रक्चर कैसी भी आ, ये तो यहाँ पर राउंड शेप में, फीमेल गैमेट तो राउंड शेप में और मेल गैमेट जो है ये किडनी शेप में. फीमेल गैमेट तो सर्कल शेप राउंड शेप में और फीमेल मेल गैमेट कैसा भी है इसमें किडनी शेप बीन शेप्ड. और देखो फीमेल गैमेट में फ्लैजिला नहीं होगी जबकि मेल गैमेट में फ्लैजिला भी है. तो बोथ आर लुकिंग डिफरेंट, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट है ये. देखो एक तो राउंड शेप में, एक राउंड शेप में और एक क्या भी है किडनी शेप बीन शेप्ड. एक मोटा, एक तो क्या भी है स्टेशनरी है फेज में, एक तो नॉन मोटाइल है, एक मोटाइल है, एक में फ्लैजिला नहीं है, एक में है. So this is the heterogamete. These are known as heterogametes. And example is fucus. Fucus algae. Fucus algae. और देखो सेकंड वन क्या भी इसके अंदर ये एक बताया भैया. एग. एग मीन्स फीमेल गैमेट्स. ये फीमेल गैमेट्स. और यहाँ मेल गैमेट जो देखो इस तरह से ये दिस इज मेल गैमेट्स. ये ह्यूमन में बता रहे भैया ये स्पर्म. एंड बोथ आर लुकिंग डिफरेंट, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट. देखो दो एग्जाम्पल है यहाँ पर. देखो heterogametes, what are heterogametes? When male and female gametes are morphologically distinct, then they are known as heterogametes. And there are two examples. First one is fucus algae and second one is human. ये ह्यूमन बीइंग के बारे में बता रहे हैं भैया. दोनों में देखो भैया इसके अंदर ये फ्यूकस एल्गी है, फीमेल गैमेट्स क्या भी है इसके अंदर राउंड शेप है और मेल गैमेट्स कैसा है बीन शेप्ड और किडनी शेप्ड. एक तो है नॉन मोटाइल, एक है मोटाइल, एक में फ्लैजिला है एक में नहीं है.
इधर देखो ह्यूमन में देख लो भैया, यहाँ पर ये फीमेल गेमिट से एग और ये मेल गेमिट है स्पर्म, एंड बोथ आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट। सो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेटेरोगेमिट्स। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भैया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया भैया। स्क्रीनशॉट ले लिया। हाय गाइस, हैव यू टेकन ए स्क्रीनशॉट? देखो यहाँ तो इसको पूरा नोट्स में लिख दो, जैसा हम स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ऐसा कैसा आपको लिखना है भैया, कॉपी में ऐसा कैसा आपको लिखना है। और यदि आप चाहते हैं पीडीएफ मिल जाए, यदि आप चाहते हैं तो हम पीडीएफ भी दे देंगे। तो वो तो व्हाट्सएप पे ले दें, पीडीएफ चाहते तो पीडीएफ डाल देंगे अपन। अरे स्क्रीनशॉट ले लिया भैया, वेरी गुड। ये Realme C15 नाम तो होगा ना भाई, यहाँ Realme C15 है। इज नो योर नेम इज Realme। ओके गाइस, देखो ये हो गया सेकंड टाइप ऑफ गैमिट्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल। अब देखो यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन हम बता रहे भैया, गैमेट फॉर्मेशन में हमने गैमेट फॉर्मेशन के बारे में पूरा कवर कर लिया भैया। और गैमेट फॉर्मेशन जो होता है, अब गैमेट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड सेल्स में होते हैं भैया। अब नेक्स्ट पॉइंट को थोड़ा अच्छी तरह दिमाग लगाना है भैया, पूरा ब्रेन का यूज कर लेना आपके। अब पूरा बोर्ड पे आप आईज ऑन द बोर्ड है ना। अब देखो यदि यहां बता रहे भी इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट, गैमीट्स आर ऑफ, या गैमीट्स आर हैप्लॉइड सेल। अब देखो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, मतलब इनमें वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, केवल एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। and have only one set of chromosomes। देखो हैप्लॉइड क्या होता है, जिनमें क्रोमोसोम का एक सेट होता है। गैमीट्स आर हैप्लॉइड सेल्स बिकॉज दे हैव ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो यहां बोल सकते हैं हैप्लॉइड सेल because they have only one set of chromosomes। अब देखो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। अब हैप्लॉइड होते हैं तो उनमें क्या होता है, क्रोमोसोम का एक ही सेट होता है। सो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट, गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल्स बिकॉज दे हैव ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब देखो ये तो वन एक सेट होगा इसमें। अब हम ऑर्गेनिज्म की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ये बता रहे, एक तो ये बता रहे ऑर्गेनिज्म, डिप्लॉइड सेल,
और यहाँ बता रहे हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बता रहे हैं, ये हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। देखो ऑर्गेनिज्म भी यहाँ पर चेंज है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म मीन्स 2n एंड हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म मीन्स n। देखो जिसमें दो सेट क्रोमोसोम के होंगे, क्रोमोसोम के दो सेट होंगे वो डिप्लॉइड, जिसमें क्रोमोसोम के दो सेट होंगे वो डिप्लॉइड, और जिसमें क्रोमोसोम का एक सेट होगा वो हैप्लॉइड। एंड गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड सेल बिकॉज दे हैव वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। लेकिन देखो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म, यदि ऑर्गेनिज्म यहाँ पर डिप्लॉइड है तो इसमें जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर मियोसिस सेल डिवीजन होगा, मियोसिस सेल डिवीजन। देखो इफ द ऑर्गेनिज्म इज डिप्लॉइड देन द मियोसिस सेल डिवीजन इज अकर। अब देखो मियोसिस में क्या होगा, 2n से हैप्लॉइड बन जाएंगे। देखो ये डिप्लॉइड है, या गैमीट फॉर्मेशन जो होगा, ये गैमीट्स जो होंगे ये हैप्लॉइड हो जाएंगे। तो ये बता रही इफ द ऑर्गेनिज्म इज डिप्लॉइड then the meiosis cell division will be occur and gametes are of haploid। gametes में तो सेट ऑफ क्रोमोसोम कितना है भैया, एक, और डिप्लॉइड सेल में कितने हैं, दो। एंड व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज हैप्लॉइड, अब देखो ऑर्गेनिज्म ही हैप्लॉइड है, इसमें एक ही सेट क्रोमोसोम है, तो देखो यहां पर भी गैमीट फॉर्मेशन होगा। देखो ये गैमेट्स तो एन ही होंगे, गैमेट्स तो हमेशा हैप्लॉइड होंगे। अब बताओ ये भी एन है, ये भी एन है, बताओ सेल डिवीजन कौन सा होगा, सेल डिवीजन होगा यहाँ पर माइटोसिस, माइटोसिस सेल डिवीजन। तो इसको समझे हुए दिमाग में रखना, आपको आपके ब्रेन में पूरे मेमोरी में डालना है पूरा। When the organism, देखो यहाँ पर क्या है, gametes are always haploid cell। देखो हमेशा हैप्लॉइड सेल होते हैं बिकॉज दे हैव ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब ऑर्गेनिज्म देखो गैमेट्स तो ऑलवेज हैप्लॉइड होंगे, नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा, एक, ओनली वन। अब देखो यहाँ ऑर्गेनिज्म बता रहे हैं डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म और ये हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सब डिप्लॉइड ही होते हैं, हैप्लॉइड तो कोई होता है भैया। जैसे यहाँ बता रहे थे, इसमें एग्जाम्पल एक बोल देते भी, यहाँ पर ये मेल हनी बी, जो हनी बी होती है, मधुमक्खी होती है, उसमें जो मेल होता है इसको ड्रोन भी कहते हैं भैया, और ड्रोन मेल हनी बी को ड्रोन भी कहते हैं हम। और ये मेल हनी बी होती है ये हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। देखो वैसे ऑर्गेनिज्म आर, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म आर डिप्लॉइड्स, बट द मेल हनी बी और ड्रोन इज ओनली वन ऑर्गेनिज्म विच हैव ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम एंड इट इज हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। देखो यदि ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड होगा तो उसमें मियोसिस सेल डिवीजन होगा। मियोसिस मीन्स 2n से n हो जाएंगे। देखो ये 2n है, ये n हो गए, ये 2n मीन्स डिप्लॉइड और ये हैप्लॉइड। और यदि ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है, देखो यदि ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है तो उसके गैमेट फॉर्मेशन में कौन सा सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस। अब बताओ गैमेट फॉर्मेशन में कौन सा सेल डिवीजन होता है, बताओ, you tell me which one cell division occur in gamete formation। if the organism are diploid then the cell division will be meiosis and gametes are haploid। when the organism is haploid like male honeybee or drone, this is the haploid organism, and in this case mitosis cell division occur and haploid गैमेट्स आर फॉर्म। तो देखो ये बताया भी हमने पूरा पूरा, इसका भी स्क्रीनशॉट कवर कर ले भैया।
So this is the first step of pre-fertilization event. This is known as gametogenesis. Gametes, formation of gametes are known as gametogenesis. Gametes are haploid cells, and gametes are of two types. One is male gametes, second one is female gametes. And gametes are of two types on the basis of morphological, homogametes and heterogametes. अब जो gametes होंगे भैया haploid होंगे because they have only one set of chromosome. यदि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होगा तो उसमें मियोसिस सेल डिवीजन होगा. मियोसिस मीन्स 2n to n, 2n से n बन जाएंगे. और यदि माइटोसिस सेल डिवीजन होगा तो हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होगा, इसमें n से n बनेंगे. इफ द क्रोमोसोम आर सेम इन पेरेंट्स एंड एज वेल एज गैमीट्स, then this type of cell division is known as mitosis. When the parents organism is diploid and the gametes are haploid, in this condition meiosis will be occur there. तो देखो ये बताया भी हमने यहाँ पर. अब हम यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट स्टेप पूरा हो चुका है भाई, कंप्लीट हो गया यहाँ. अब देखो यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है ये दो टाइप के हैं. फर्स्ट वन इज हैप्लोइड एंड डिप्लोइड. तो लेट्स वी डिस्कस अबाउट द डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म एंड गैमेट फॉर्मेशन. तो एक टेबल बनाएंगे यहाँ पे, ये टेबल बनाएंगे जिसमें अपन पूरा कंप्लीट करेंगे इसको. तो लेट्स सी द टेबल. देखो इसमें 3 कॉलम बनाएंगे भी इसमें. फर्स्ट वन द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म नेम, और सेकंड लिखेंगे भी इसमें क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर इन पेरेंट्स और डिप्लॉयड कंडीशन. देखो पेरेंट्स जो होंगे वो तो डिप्लॉयड ही होंगे ऑर्गेनिज्म में. अब क्रोमोसोम नंबर बता रहे हैं इन पेरेंट्स डिप्लॉयड सेल्स में, और यह बताएंगे क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर इन गैमीट्स. देखो ये तो पेरेंट्स में बताएंगे ऑर्गेनिज्म में, और ये गैमीट्स में. क्रोमोसोम नंबर इन पेरेंट्स और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म एंड क्रोमोसोम नंबर इन गैमीट्स. अब ये तो गैमेट्स में तो n होंगे, और ये कैसे होंगे भैया 2n. 2n मीन्स डबल. 2 set of chromosome are found in parent or organism, and 1 set of chromosome is found in gametes. So these are the 3 columns. Now we start the name of organism. So let's see, first organism is human being. First one is human being. Number of chromosome in human being. What is the number of chromosome in human being? There are 4. If organism is 2n diploid, then the number of chromosome are 46. देखो 2n होंगे तो 2 set of chromosome are found in diploid cell. तो यहाँ यदि 46 है तो बताओ n कितना होगा. 2n is 46, then the n और number of chromosome in gametes यह होंगे इसके हाफ. ये 46 है तो ये 23 होंगे, बिकॉज गैमेट्स आर हैप्लोइड. ये देखो हैप्लोइड बता रहे हैं यहाँ पर, ये हैप्लोइड. हैप्लोइड मीन्स हाफ और n. देखो यदि ये 2n है तो ये n रहेगा. तो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ह्यूमन बीइंग. एंड सेकंड वन इज हाउस फ्लाई. हाउस फ्लाई, there are 12 chromosome in diploid condition, and what will be the n? If the 2n is 12, then the n is 6.
देखो यहाँ पर हाउस फ्लाई के अंदर डिप्लॉयड कंडीशन में 12 क्रोमोसोम है, तो बताओ यहाँ पर गैमीट्स में कितने होंगे, हाफ हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे 6। थर्ड एग्जाम्पल इज रेट। अब देखो रेट में कितने क्रोमोसोम होते हैं, इसमें होते हैं 42। डिप्लॉयड कंडीशन में 42 है, तो देखो हैप्लॉयड में क्या होगा 21। हाफ करना है इसका, इसका हाफ करना है। एंड फोर्थ एग्जाम्पल इज डॉग। अब डॉग के अंदर होते हैं 78, और इसका हाफ कितना हो जाएगा भैया 39। देखो ये ह्यूमन बीइंग, ये हाउस फ्लाई, ये रेट, और ये डॉग। अब इसका फिफ्थ एग्जाम्पल ये इसके अंदर फिफ्थ है कैट। और कैट जो होता है भी इसमें डिप्लॉयड कंडीशन में कितने क्रोमोसोम होंगे, इसके होते हैं 38। तो बताओ एन कितना हो जाएगा, हाफ कर दो इसका 19। एंड सिक्स एग्जाम्पल इज फ्रूट फ्लाई। देखो वो हाउस फ्लाई थी, ये फ्रूट फ्लाई है। वो हाउस फ्लाई है और ये फ्रूट फ्लाई है। और देखो यहाँ पर हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या होता है, मस्का डोमेस्टिका। हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम ऑफ हाउस फ्लाई इज मस्का डोमेस्टिका। एंड फ्रूट फ्लाई का जो साइंटिफिक नेम होता है, साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रूट फ्लाई इज ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर। तो देखो फ्रूट फ्लाई के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रहेंगे, यहाँ पर रहेंगे भैया 8, तो इधर कितने हो जाएंगे 4। तो दीज आर द 6 एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स। एंड 7 वन इज बटरफ्लाई। देखो बटरफ्लाई तो गार्डन फ्लाई है, और इस बटरफ्लाई जो होती है इसमें 380 होते हैं भैया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर 380। सो हैप्लॉइड सेल में कितने होंगे 190। ये तो एग्जाम्पल हो गए एनिमल्स में। देखो आपको टेबल में क्या कॉलम बनाने हैं, फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिज्म, नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्रोमोसोम नंबर इन पेरेंट्स और डिप्लॉयड कंडीशन, क्रोमोसोम नंबर इन गैमीट्स और हैप्लॉयड कंडीशन। इधर तो डबल आ जाएंगे, इधर इसके हाफ हो जाएंगे भी। नाउ द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स। ऑफियोग्लोसम फर्न, ऑफियोग्लोसम फर्न, these are pteridophytes, ऑफियोग्लोसम फर्न। और ऑफियोग्लोसम फर्न जो होती है इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं भैया 1260। देखो 1260 क्रोमोसोम होते हैं इसमें, और हैप्लॉइड कंडीशन में क्या होंगे भैया 630। 1260 इसका हाफ कर दो 630। एंड नाइन्थ एग्जाम्पल इज एप्पल। ऐसा मत सोचना भी एप्पल का आईफोन बता दिया आपको। ए नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एप्पल इन डिप्लॉयड कंडीशन आर 34, तो बताओ इधर कितना हो जाएगा 17। एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज राइस। राइस नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन राइस इज 24, इन हैप्लॉइड कंडीशन में क्या हो जाएगा भाई 12 हो जाएंगे इधर। ये सारे देखो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको मेन आपको इसमें दो एग्जाम्पल लगने हैं, एक तो ह्यूमन बीइंग एंड सेकेंड इज फ्रूट फ्लाई। देखो दो में तो आपको याद करें, और एक हाईएस्ट क्रोमोसोम किसमें है, हाईएस्ट क्रोमोसोम है ऑफियोग्लोसम फर्न। एंड 11th एग्जाम्पल इज मेज। और देखो मेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 20, एंड हैप्लॉइड कंडीशन में होंगे 10। एंड 12th एग्जाम्पल इज पोटैटो, एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पोटैटो इज 48, एंड इन हैप्लॉइड कंडीशन इज 24। एंड लास्ट एग्जाम्पल इज 13th एग्जाम्पल इज ऑनियन। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ऑनियन is 16 and in haploid condition 8. So this is the table of chromosome in organism.
देखो ये पूरे नंबर ऑफ क्रोमोसोम बताए भी हमने, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। देखो आपने हमने पढ़ा था भैया, हमने आज पढ़ा था डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म और हैप्लॉइड। मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म आर डिप्लॉयड कंडीशंस, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, और ये सारे डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का एक ही एग्जाम्पल बताया था, मेल हनी बी और ड्रोन। If the organism is diploid condition, then the meiosis cell division will be occur in diploid organism. और यदि ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड होगा, जैसे हनी बी, मेल हनी बी या ड्रोन, तो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो उसमें होता है माइटोसिस सेल डिवीजन। और उसके बाद हमने बताया भी यहाँ पर ये सारे डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्रोमोसोम इन पेरेंट सेल और डिप्लॉइड कंडीशन, एंड क्रोमोसोम नंबर इन गैमीट्स और हैप्लॉइड कंडीशन। देखो डिप्लॉइड में, डिप्लॉइड क्या होता है? डिप्लॉइड मीन्स डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म आर दोज इन विच नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम आर फाउंड इन 2 सेट्स। और यदि हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होगा तो उसमें क्या होगा? गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड बिकॉज दे हैव ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड तो देखो गैमेट्स तो हमेशा हैप्लॉइड होंगे, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम का सेट क्या होगा? एक ही होगा। और जबकि डिप्लॉइड में क्या होंगे? 2। तो ये तो यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो हमेशा डबल होंगे। और हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर या गैमेट्स के अंदर क्या होगा? ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी इसका हाफ हो जाएगा। और बताओ कौन सा सेल डिवीजन होगा? जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो हमेशा मियोसिस होता है, एक्सेप्ट मेल हनी बी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भी। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। So this is the first event of pre-fertilization phase, and this is the gametogenesis, first event in pre-fertilization events. स्क्रीनशॉट ले लिया भैया। This is all about the gametogenesis, which is the first event in pre-fertilization phase. तो बहुत है, इनफ है आज के लिए, इतना रिमेम्बर तो कर लो आप, इतना दिमाग में तो बिठाओ, ब्रेन में आना चाहिए पूरा। थोड़े दिन बाद अपन इसका टाइमिंग बढ़ा देंगे भी, टाइमिंग 1.5 आवर करेंगे। लेकिन जब तक ये लेसन चल रहा है चैप्टर 1, इसमें क्या है, थोड़ा दिमाग लगाना है आपको, ब्रेन का तो यूज करना पड़ेगा। सेकंड चैप्टर से तो क्या हमारे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो लेट्स सी द फर्स्ट टॉपिक ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, दिस इज गैमेटोजेनेसिस। ओके गाइस, बाय बाय, सी यू फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट विल बी